About cruise lines, like they always need the very high skilled people. First one in India that we are open फॉर क्रूज लाइन for cruise line. सर ये अगर कोई शिप पे काम करने जाती है ना, अगर मन में अगर घबराहट हो रहा है जो अरे मेरी बेटी वहाँ जाएगी यहाँ जाएगी ऐसा होगा वैसा होगा, no, it's all under the MLC Maritime Labour Convention 2006. You Yeah, have and- to be skilled enough. You see, आज डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है ना, यस उसमें कोई डिग्री चाहिए. सब और लोग कितना कमाते हैं? कैपेबिलिटी पे डिपेंड लोग कितना कमाते हैं? करोड़ों में कमाते हैं ना. हाँ So this world is not for the degree. This world is for the skill. Controversial हो जाएगा. नहीं नहीं But I will still say I am not in favor of only go for degree. सर बहुत ऐसी कंपनी है सर डिग्री आप लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि सीखना है. अगर आप वो सीख चुके हो तो why you need degree? 400 acres of land, 100 acre we just will build for this cruise training program. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पेलन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मैं ऑडिटोरियम में हूँ, तो यहाँ पे सर अवेलेबल है। तो सर पूरा ही मतलब डिटेल में हम लोगों को जानकारी आज मिलेगी, जैसे कि क्रूज लाइन के बारे में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ के यहाँ पे पढ़ाई होते हैं। तो पूरा डिटेल में, क्योंकि आज मैं आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, आप ही लोगों की तरह मैं भी समझूंगा और सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्सेज़ के बारे में, क्योंकि इंडिया में कहीं ना इस कोर्सेज़ के बारे में मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है, जो कि सर आज आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन लूँगा। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Thank you. My name is Mukund. You can call me Captain Mukund. Actually, I have been sailing around the world, and मैं life का almost 13 years I have spent at the sea. But now this is a very big opportunity in India for Indian people. Last year, our Prime Minister signed an agreement in Greece on 25th August, bilateral agreement, and then India got recognized for the cruise ship. Then only within 6 months of time, we have almost 9 to 11 cruise ships named under Cordella. It's going on. The main thing is about cruise lines, like they always need the very high skilled people, and there is a very big shortage of that. 40% seats are still void. After COVID, there was a lot of disturbance in this industry. Now, if we take all the hotel management people, then how five-star hotels will work? Cannot, right? So we have still lack of the people. That's why we come with this initiative under the supervision of our chairman, sir, Mr. Apurvo Saha, who come with this initiative, and we have submitted this to our education ministry. Then they approved us, and now we are the first compact training center for cruise lines in India, सर located in Kolkata. सर ये जो आपने जैसे कि बताया सर कि मतलब इंडिया में मतलब मात्र सर 1 एंड 2 ही जगह पे, कहाँ पे सर और फर्स्ट कहाँ पे? No, I will say there is no place actually. We are the first. वी आर द फर्स्ट ना सर। There is one in Mumbai, and one in Goa named under Kamakshi. Sorry, I don't want to take the name, but it's still there. They do for the culinary only, but here we do for all the segments. In Mumbai, there are some manning agencies. If somebody don't pass the interview, then they have to go for some training, but they are not open like this. So I can say proudly that we are the first one in India that we are open फॉर क्रूज लाइन ना for cruise line. सर। ये जानना है सर हमको कि सर क्रूज लाइन में भी सर कितना सारा डिपार्टमेंट है, किसी को अगर सपोज सर आना है, सपोज है Okay, cruise line is just like a floating city, 7-star floating city. एक सिटी में क्या होता है? सब कुछ होता है. You need a restaurant, you need a home, you need food, you need shopping,
अदर देन पुलिस, वो एक शहर है, तैरता हुआ शहर है. So you got everything there, and then you got every position. But the higher position you get, those are in housekeeping, culinary, and F&B. Because जितने लोग वहाँ जा रहे हैं, suppose like I give you one example, Icon of the Seas, biggest ship in the world, that carry almost 9,700 something. I don't remember exactly. It's just around something. 9,700 people at a time. So you need that much room, right? So you need the cleaning for the room, correct? So we need the staff. Those people need to eat. Food. So we need the chef. Those people enjoy. We need the service. When they go for the lunch or dinner or drink or something, so we need to have the service attendant, right? So it's a huge demand. These three sectors are major. Other than that, we have photographer, we have spa, we have laundry, we have gym trainer, we have IT guy, we have nurse, a lot of all departments we have there. But these three are the major. सर मैंने सर देखा है सर इस लाइन पे बहुत जगह पे मैं भी मतलब रिसर्च वगैरह कर रहा था तो सर ये देखा है कि मतलब कहीं ना कहीं लड़की लोग इस लाइन में बहुत ही कम आती है मतलब ऐसा क्यों सर मतलब You see, ये हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है. हाँ नहीं ये इंडिया के बारे में सर और सब कंट्री में मैं No, देख other countries, girls are the first one. They are the most. Personally, I have taught my students in Thailand, and I will say in the ratio, 80% girls, 20% boys. the huge number. It's only in India. Suppose like जो हम लोग बिहार से जाते हैं, यूपी से जाते हैं, और our parents never allow. और सर हम लोग का बहुत एक लोग नैरो थिंकिंग है ना. नैरो थिंकिंग प्लस सर अवेयरनेस का भी तो कमी है ना. अवेयरनेस का कमी है, देन नैरो थिंकिंग्स, नैरो माइंडेड पीपल्स लाइक लड़की बेटी जाएगी उधर तो कैसे करेगी. बट नो, अभी दुनिया बदल रहा है, एंड वी आर सपोर्टिंग नारी सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट. वी आर देयर टू सपोर्ट इवन विद दिस प्रोजेक्ट, and we are targeting most of them from the northeast because there people are much more innovative and they are much more open. हाँ सर बहुत सारे पेरेंट्स लोग जैसे कि देख रहे हैं जिसकी मतलब बेटी को पढ़ाई करना है इस लाइन में सर क्या बोलना चाहेंगे उस पेरेंट्स मैं यही बोलूँगा, आप उनको रोकिए मत, उनको मौका दीजिए. इट्स नॉट अबाउट लाइक वो पुराना समय बहुत पीछे रह गया है. आज का ज़माना ना लड़कियों का है. लेट देम बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ पावर. दे कैन डू मच बेटर देन बॉयज़, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट वोमेन एम्पावरमेंट. तो सर आपको एक्सपीरियंस भी होगा क्योंकि आप इतने कंट्रीज सब ट्रैवल किए हो तो आपको पता है, जानकारी है, तो इसीलिए मतलब सर बता रहे तो आप लोग एक बार मौका दे करके ट्राई कर सकते हैं. और भी सर जैसे कि क्या क्या चीज़ का सर इंडिया में अभी भी आपको लगता है कि कमी है तो वो चीज़ को फुलफिल कमी है थिंकिंग ऑफ द पीपल. पीपल हैव टू चेंज देयर माइंड दैट लड़कियां हमसे बेटर कर सकती हैं. लड़कियां they got such a power, even we boys don't have that much. They can change the world. Yes sir, definitely. They are the one who belongs to the whole industry. And अगर कोई शिप पे काम करने जाती है ना, अगर मन में अगर घबराहट हो रहा है जो अरे मेरी बेटी वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, no. It's all under the MLC, Maritime Labour Convention 2006. They all are protected, and they will get a very good exposure to industry. Let them live the life. उन लोग को जिंदगी जीने दो यार. क्योंकि हाँ सर आप ऐसा जिंदगी मत करो, उन लोग को जिंदगी जीने दो. और सर ये बोल रहे हैं सर, और मेरा वन लास्ट क्वेश्चन है सर कि मतलब
पेलन ग्रुप ही इंस्टीट्यूट क्यों चूज करना चाहिए सर? रीजन सर, 2 और 3 पॉइंट्स यू कैन। पहला पॉइंट, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी आर स्प्रेडेड ओवर 400 एकर्स ऑफ लैंड। सर मैं ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मैं सर यहाँ इंटर किया ना, मतलब इतना बड़ा आप लोगों का लैंड है ना सर, स्पेशली मतलब हर एक कोर्सेज के लिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग ही है। यस, तो ये चीज़ अच्छा है सर। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप्ड होगा ना, ये पूरा एरिया और भी in 400 acres of land, 100 acre we just will build for this cruise training program, जो कि इंडिया में कहीं नहीं, और कोई कर सके तो बेटर है, बट अभी तक नहीं है। डेफिनेटली हमने एक इको क्रिक, हमारा क्लब है 4.5 स्टार रेटेड, जो हमने इतना बड़ा बनाया है सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए, नथिंग मोर देन दैट। मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर रही है। 70% इज प्रैक्टिकल, 30% इज थ्योरी। वी हैव द सर्टिफाइड ट्रेनर्स सर फ्रॉम द अभी भी आप क्रूज लोगों के लाइन्स। यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रही है यहाँ पे? हाँ, exactly. और सर Because you know, hands-on practice makes you more perfect. If you are not doing the practical things, no, it will not make you eligible enough. Theoretical part we all learn, but when you practice, cruise line never require anything. Cruise line needs skilled people. They don't need any degree. They don't need a hotel management degree. They need you to be skilled enough. That's it. एंड सर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे सर आपसे। सर आप जिस समय सर ये सब कोर्स कर रहे थे, आप भी किए होंगे सर, तो सर मेरा ये जानना है सर आपको क्या उस समय तो सर और भी अवेयरनेस का कमी था, डिफ़िकल्टीज़ क्या आई थी सर? मैंने एक्चुअली, मैं हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, आई एम ए कैप्टन, सो आई वाज फ्रॉम द डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट मैंने 2016, सॉरी नॉट 2016, सॉरी 2008, I went to Bangkok first time. I did my training from there. There it was like, actually in first attempt only, I got 47,000 rank all over India in AIEEE. फिर मेरे मन में ख्याल आया, जो अभी 5 साल तो मुझे AIEEE करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, माई फैमिली हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद सैलरी पैकेज क्या शुरू होगा, 10,000, 20,000, 25,000 करके, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हेयर, 3 months शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया। यू कैन सी आई एम नॉट ओल्ड इनफ, आई एम स्टिल यंग, आई एम रिटायर्ड नाउ, बट दैट टाइम आई स्टार्टेड विद दिस व्यू, लाइक जो शॉर्ट टाइम में कैसे फैमिली को सपोर्ट करना है। आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली दैट टाइम, नाउ माई फैमिली इज okay. And then I started 3 months training there. Still there were challenges, but I managed it. So it's almost about 15 years, 16 years ago. So now the time is still more faster than last 15 years. It's a fast track world now. I will say just don't go for only degrees. डिग्रीज नेवर हेल्प यू। हाँ सर, ये भी मैं सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि सर इंडिया में एक चीज़ है, पेरेंट्स लोगों का ये थे कि इंजीनियरिंग करवा दो, डॉक्टर का, मतलब मेनली डिग्री के ऊपर ही फोकस। स्टूडेंट के मन में क्या है, यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ। यू सी आज डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है ना, यस, उसमें कोई डिग्री चाहिए? नो सर, सब और लोग कितना कमाते हैं, कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लोग कितना कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं ना। हाँ सर। So this world is not for the degree, this world is for the skill. You can see here we have a lot of skill development courses. हाँ sir. We started. हाँ sir, we can see swimming. No, not only this. Other than cruise, you can see contact lens. Then for the robotics, then computer applications, then other things. Students can come and study for free. So free of cost. Free of cost. तो सर ये तो पूरा माइंड ब्लोइंग है सर।
But there are some circumstances like they have to pay after while they are on the internship or something, they have to return back something. But the course is free. We just want people to develop their skills and help the industry. इसीलिए सर मैं अभी देख भी रहा हूँ बहुत सारे मतलब कंपनी लोग अभी मतलब जॉब से बहुत लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ स्किल्ड नहीं है, डिग्री है सर, डिग्री है सर, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ. और सर फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं इसका जस्ट उल्टा है, वो लोग डिग्री से पहले सर स्किल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आई हैव वर्कड इन फॉरेन कंट्री फॉर 15 years. What I have feel myself, degree is not important. Of course, मेरा ये स्टेटमेंट शायद कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. नहीं. But I will still say, I am not in favor of only go for degree. सर बहुत ऐसी कंपनी है सर. डिग्री आप लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि सीखना है. अगर आप वो सीख चुके हो तो why you need degree? हाँ सर. जैसे सर मैं एक दो कंपनी का नाम लूँगा सर, बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे सर आप विदाउट डिग्री भी जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं. जैसे टेस्ला हो गई, स्पेसएक्स हो गए, एलोन मस्क की कंपनी. हाँ, they are all startup. Tesla, Elon Musk. You know, when you talk about Elon Musk, you must be knowing that how he have developed. Twitter को उसने X कर दिया. Electric cars, electric vehicles coming from where? First started by Tesla only, right? Yes, sir. If you talk about Jack Ma, was he very much educated? No, sir, definitely. He If you talk about KFC owner, he started in 65 years. When he was 65 years old, he got success. So these all things doesn't matter. That's why I'm saying always, so you need to be skilled enough, and you need to challenge yourself. When you challenge yourself, you prove. Nothing more than that. तो सर मैं लास्टली मैं बोलूँगा कि थैंक यू सर कि आप इतने अच्छे से सर ने बताया, डिस्क्राइब किया, और सर से भी आज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. तो सबसे पहला बात मुझे ये सीखने के लिए मिला कि मतलब अपने ऊपर मेनली ज़्यादा फोकस करें, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करें, अपने आप को बनाने के ऊपर फोकस करें कि यही चीज़ You have to believe yourself. You have to believe yourself. You have to develop yourself. No one is better than you. क्योंकि अपना अगर आपका कैपेबिलिटी अगर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच ही जाओगे. तो कॉलेज और कोई भी कंपनी आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं अच्छा मुकाम तक नहीं लेके जा सकते, आप खुद ही अपने आप को अच्छा मुकाम तक लेकर के जा सकते हो. तो सर थैंक यू मतलब इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और मैं ये चाहूँगा सर कि आप लोग भी हमारे ऑफिस में आए एक बार, मैं वहाँ पे भी आप लोगों के साथ में पॉडकास्ट करूँगा. थैंक यू सर. Thank you very much.